My dear students, peace be with you all. Today we are going to start a new topic, that is adding, subtracting, multiplying numbers with the base 2, 5 and 8. All of you kindly take out page number 41. The topic that we are going to discuss today is adding, subtracting and multiplying numbers with base 2 only. With base 2 only. Tomorrow we will discuss with base 5 the same three operations, and day after that 8. Now let's start this one. Point A is asking you binary number system. Binary also means with base 2. Binary also means with base 2. अगर binary का word use हो और base 2 का word use हो, it means these both are same. So please don't make get confused in that. Addition. We know that in the binary number system only two digits 0 and 1 are used. Which two digits could be used? Only 0 and 1. ना आप 2 यूज कर सकते हो, 3 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. It means in the binary system with the base 2 the only two digits that would work would be 0 and 1. Would be 0 and 1. The topic is very much new to you. It may seem very much difficult, but inshallah when we will do that na, you will find it very much easy. While adding, if the sum is greater than 1, then we divide the sum by 2. अगर आपके पास सम जो है, लेट सपोज यहाँ पे नंबर है 1 and 1, इसको ऐड करें तो आपका आंसर क्या होगा गाइस? My eyes are on your chat box, you can write me into that. A very simple thing is that जब आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या होगा? या it's 2. But as we are dealing with the binary number with the base 2, we cannot write 2 in the answer. We cannot write 2 in the answer. उसके लिए क्या करेंगे? हम रफ वर्क में आपके पास ऐड करने के बाद जो नंबर आया होगा उसको डिवाइड करेंगे आपके बेस के साथ. यहाँ पे वो दोनों नंबर सेम थे, दैट इज 2 and 2. अब आप 2 को 2 के साथ डिवाइड करें तो आपका क्वोशंट क्या होगा? मुझे चैट बॉक्स में लिख के दें. If we divide 2 with 2, what would be our quotient and remainder? Quotient would be 1, and what would be the remainder, my dear students? Thank you. Now, one thing is to memorize. Memorize is this, that जो आपके पास quotient आता है वो carry हो जाता है next number में, और जो remainder आता है वो हम इधर आंसर में लिखते हैं. Quotient आपके पास आ जाता है. Let's start with our first example. Find the sum of आपके पास नंबर है 1 1 1 with the base 2 and 1 and 0 with the base 10, 111 with the base 2 and 10 with the base 2. Is this clear? बेटर इज दिस कि आपने इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से स्पेशियसली लिखना है. आप इसको कंजस्ट करके नहीं लिखोगे. आप इसको कंजस्ट करके नहीं लिखोगे. आपके पास क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे. हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 1 1 1. अंडरनीथ 1 यू विल राइट 0, लाइक जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कि यूनिट शुड बी कम अंडर यूनिट, 10 शुड बी कम अंडर टेंस. Underneath 1 we will write 0, underneath 1 we will write 1 and with the base 2. प्लीज़ अब आपने बहुत ध्यान से मेरे स्टेप को जो है वो फोकस करना है. नो वन ऑफ यू इज गोइंग टू राइट. फर्स्ट अंडरस्टैंड गाइस. जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, अगर आप 1 और 0 को ऐड करोगे तो व्हाट वुड बी द आंसर? या 1. As we are dealing with the binary number and the answer is 1 which is less than 2, तो हमें इसको लिखने की permission है. In my answer I will write 1 as it is. Is this clear? Can I move to my next step? Is this clear? Can I move to my next step? Michael John is clear. Okay.
1 और 0 को जब हमने ऐड किया आंसर 1 आया, और हम बाइनरी नंबर यूज कर रहे हैं विद द बेस 2 और ये 2 से स्मॉलर था, तो वी आर परमिटेड टू राइट इट इन आवर आंसर। नेक्स्ट चेक करें सेकंड जो आपके पास कॉलम एंट्रीज हैं 1 एंड 1। अब 1 और 1 को ऐड करो गाइस, तो आपके पास आंसर होगा 2, एंड एज द बेस इज ऑलरेडी 2, तो मैं यहाँ पे मुझे परमिशन नहीं है कि मैं यहाँ पे 2 लिख सकूँ। मैं क्या करूँगी, मैं एक रफ वर्किंग कॉलम ड्रॉ करूँगी। जो मेरे पास आंसर आया है 2 उसको मैं लिखूँगी और उसको अपनी बेस जो 2 है उसके साथ डिवाइड करूँगी। 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, आपके पास क्या आ गया है 2 1 टाइम्स 2, आपके पास रिमाइंडर में आया है 0, आपके पास कोशेंट में आया है 1। नाउ कीप इन माइंड जो आपके पास कोशेंट आता है वो कैरी हो जाता है नेक्स्ट नंबर पे। जैसे हम ऐड में आपका कैरी देते हैं, लाइक वाइज आपका यहाँ पे भी जो कोशेंट आएगा वो कैरी हो जाएगा, जो कोशेंट आएगा वो कैरी हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आपके पास होगा वो आप अंडरनीथ दैट वैल्यू लिख दोगे। यहाँ पे कोशेंट कैरी हो जाएगा, कोशेंट आपके पास कैरी हो जाएगा और रिमाइंडर आपके पास आंसर में आ जाएगा। एम आई क्लियर? अब आप चेक कीजिए, जो हमने नंबर कैरी दिया है 1 और क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो भी 1 है। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। अब अगेन मैं 2 को 2 के साथ डिवाइड करूंगी, मेरे पास कोशेंट आ गया है 1 और मेरे पास रिमाइंडर आ गया है 0, रिमाइंडर हमारा आंसर में आ जाएगा। अब आप देखो कोशेंट मैंने कैरी करना है बट यहाँ पे कोई नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, कोई भी नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो मैं अपना 1 एज इट इज लिख दूंगी, मैं अपना 1 एज इट इज लिख दूंगी। Till here, if you have any kind of question, query, you can write in the chat box. I'm here to reply. Next topic is subtraction of number. Example number 1 is relatively easy. Let's start with the easy example. You have a value 1 and 1 with the base 2 minus 11 with the base 2. Point to remember is in decimal system we borrow. Kindly take out your books and make a tick on that and read that again and again. We borrow 1/10 from the next column. वो आपसे कह रहा है कि रूटीन में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोरो करते हैं 1/10 फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई बोरो करने की ज़रूरत पेश आई, लेट सपोज आपने 3 में से बोरो करना है, 3 में से बोरो करके इस 1 को कोई नंबर देना है, मैं इसमें से बोरो 1 करूंगी और ये पीछे क्या रह जाएगा 2, बट इसकी बेस 2 है, तो वो जो 1 हम जो यूनिट इससे बोरो कर रहे होंगे हम उसको टेंस नहीं, हम उसको 2 कंसिडर करेंगे, हम उसको क्या कंसिडर करेंगे 2, और वो 2 हम इस नेक्स्ट वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3। एग्जाम्पल चेक कीजिए, हम इसको, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, इसको वर्टिकली लिखेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, दैट इज परफेक्टली राइट। आफ्टर दैट आप चेक कीजिए कि हम 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो। व्हाट आई विल डू, आई विल बोरो अ नंबर फ्रॉम दिस वन। यूजुअली अगर हम किसी रूटीन सब्ट्रैक्शन को डील कर रहे हों, नंबर बोरो करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10। बट हम बाइनरी नंबर डील कर रहे हैं, जब हम बाइनरी नंबर डील कर रहे होते हैं तो जो हम 1 यूनिट उसमें से कैरी करेंगे हम उसको टेंस नहीं, हम उसको 2 कंसिडर करेंगे, यहाँ हम उसको 2 कंसिडर करेंगे, और उस 2 को 0 में जब मैं ऐड करूंगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 0 क्या हो जाएगा, गाइस चैट बॉक्स प्लीज।
टू प्लस जीरो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। उस टू में से वन को माइनस कीजिए, योर आंसर वुड बी वन। आज का हम टॉपिक यहीं तक क्लोज करते हैं। टुमारो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू रिपीट माई द सेम लेक्चर, सो प्लीज डोंट गेट वरीड, द टॉपिक इज वेरी मच न्यू टू यू। We will deal this again. No worries. Have a good day. May God bless you all.